दोस्तों OnePlus 13 series is set to launch in India on 13th of January. After 11 and 12, OnePlus 13 जनवरी में ही लॉन्च हो रहा है. लास्ट 2 years से अराउंड फेब में लॉन्च हो रहा है. 13 सीरीज में हमें एज यूजुअल OnePlus 13 और 13R मिलेंगे और इनकी प्राइसिंग मोर और लेस सेम रहेगी एज लास्ट ईयर. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जो मैं भी बताऊंगा इन वन ऑफ द वेरिएंट्स. और आप इसको Amazon या फिर OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं. मेरे लिए OnePlus थोड़ा स्पेशल है बिकॉज दिस इज द फोर्थ फोन दैट वी हैव इन द फैमिली. करंटली आई एम यूजिंग OnePlus 11R और इससे पहले मैं OnePlus 7 यूज कर रहा था एंड आई ऑल्सो हैव OnePlus 12R who has someone in the family using it. So I should be the best person to tell you about the pros and cons of this phone, especially this series, the R series. And apart from that, should you buy 13R in 2025 or not? So let's get started. सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफर्स की. No matter from where you buy it, be you buy it from Amazon.in or OnePlus.in, pricing इसकी more or less same रहेगी. You get around 3,000 in bank offers. I think this ICICI Bank, yes. If you want to exchange your old phone, you can get up to 2,000 bonus on the exchange. And bonus का मतलब है कि जो आपको exchange value मिल रही है वो तो मिलेगी ही, 2,000 उसके ऊपर से मिलेंगे if you buy it in this first sale. और अगर आपके पास ऑलरेडी एक OnePlus का ही फ़ोन है पहले, तो you will get up to 4,000 bonus apart from your usual exchange value on your phone. So that's a great thing. In fact, मैंने भी 11R लिया था. I got a great bonus exchange. I exchanged it for OnePlus 7. Apart from that, bank offers वगैरह मिला के और other offers, it was a great deal for me. अगर आप सोच रहे हैं तो you should definitely consider it. मैंने पर्सनली OnePlus.in से लिया था. I live in Delhi. वहाँ पे जो सर्विस थी, जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस वगैरह रहा, वो अच्छा था. There was no issues as such. Box came packed in without any issues, without any damage. In fact, हो सकता है Amazon से थोड़ा बेटर ही हो एक्सपीरियंस, बट पर्सनली आई लाइक्ड इट. मैंने 2 या 3 फ़ोन सारे के सारे OnePlus.in से ही ऑर्डर किए हैं. अच्छा, कलर्स की बात कर लेते हैं. 12R आता था ब्लू, ब्लैक और रोज गोल्ड में. In case of 13R, we only have 2 colors, at least for now. Later on, OnePlus can release more colors, just like it did with 12R. Initially वो blue और black I think उसमें launch हुआ था, and rose gold there was one more special edition color which was launched afterwards. But right now अभी आपको इस पास black और एक gold silverish color मिलेगा 13R के अंदर. This time around OnePlus is giving you 180 days of phone replacement warranty. It's different from the standard warranty that you get, the 1-year warranty. ये phone replacement warranty है जिसमें no questions asked होंगे in case any issues आपको आ जाते हैं, like especially people are concerned over green line issue जो OnePlus phones में काफ़ी देखने को मिला था. Even though green line is not limited to OnePlus, green line बेसिकली एक AMOLED स्क्रीन का इशू है. तो वो सैमसंग के, एप्पल के फ़ोन्स में भी देखने को मिला है. इनफैक्ट अदर वीवो, ओप्पो में भी देखने को मिला है, बट OnePlus में फॉर सम रीज़न ज़्यादा रहा है. दैट्स व्हाई इट वाज मोर क्रिटिसाइज्ड. बट whatever the case is, it's good that the brand is willing to have a 6 months replacement policy without any questions if you encounter such an issue. So personally I really appreciate this. Along with this, आप एक extended warranty भी ले सकते हैं इसके साथ. Apart from the usual 1-year warranty, you can go for 1 year of additional warranty at $799. I'm talking about if you buy it from OnePlus.in. Amazon पे भी I think extended warranty का option है, but I don't know the exact pricing at this moment. I'll just put a screenshot on this right now and you can take a look. That extended warranty will just be like a standard warranty. अगर आप accidental coverage लेना चाहते हैं, wherein your phone breaks by dropping or which is not generally covered in the standard warranty, तो उसके लिए I think the price is $2399 से starting है. And apart from that, OnePlus is also giving the lifetime warranty for the green line issue on screen. ये एक phone replacement plan से बिल्कुल different है. That is just for 6 months and that covers the hardware part. Even though screen is also hardware, but screen का issue एक more prevalent रहा है, तो उसके लिए एक lifetime warranty OnePlus दे रहा है कि किसी भी टाइम, no matter 1 year or 2 years within the extended warranty or even any time after that, it's lifetime. तो आप फ़ोन को सर्विस सेंटर में दे सकते हैं and they will definitely give a service to you. They can either fix it or they want to replace it. आपको एक भी रुपया नहीं देना उस केस में. तो that's amazing. That's again a great thing. अच्छा, उसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ जो आपको मिलेंगी एज अ बेनिफिट इफ़ यू बाय इट इन दिस सेल. सम कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है एयरपोर्ट पे जो आपको यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स के अंदर देखने को मिलता है. और OnePlus का कुछ रेड कॉइन्स का प्रोग्राम है which you have once you create an account on OnePlus.in and you purchase a product like a phone, headset or anything else, then you earn some red coins. So this time around अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो you will get twice the amount of red coins on this purchase. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 13R is coming with Oxygen OS 15 and Android 15 out of the box, and
This time around, it's giving 4 years of Android major upgrades and 6 years of security updates. This is the major jump if you compare it with 12R or 11R. You know, वहाँ पे 3+4 का ही मिलता था usually, 3 years का आपको major Android update और 4 years का security update. But this time it has been bumped to 4+6. I mean, you will not be able to use your phone more than that. Even ऐसा भी हो सकता है कि आप phone किसी को sell कर दो and it'll still have some upgrades left, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके बाद. तो I think इतना तो I don't know iPhone में भी इतना है या नहीं है, और does it match it? But that's again a wonderful initiative, I would say, OnePlus has taken. It beats the biggest brands in the world right now in terms of providing regular OTA updates. बात कर लेते हैं कुछ मेजर फीचर्स, हाइलाइट्स और स्पेसिफिकेशंस की. तो इट कम्स विद AI नोट्स. ऑफ कोर्स AI इज एवरीवेयर. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी था, बट दिस टाइम इट्स इवन मोर इंटीग्रेटेड. सो नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, यू कैन मेक इट फॉर्मल, यू कैन मेक इट कैजुअल, और आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं according to the content which you have written, depending upon whom do you want to send it. If you want to send an email to someone in your office, then it can be more formal, and the same text if you want to send it to your friend, then it can be casual. Similarly, there are a lot of writing styles जो उसमें आपको दिखेंगे options में, and it's even more. So this was all about notes. इसके अलावा imaging part है. Imaging is again, I think, circle to search, and you have unblur effect. You can erase background from the image. You can erase a person from your photo, things like that. So again, that's common. AI is not that much great if you compare it to Samsung AI features. Those are very deeply integrated and great to use. But I think OnePlus kind of has an image to put everything in a balance. Like ये किसी चीज़ में extreme नहीं जाता, especially the R series जो है. Will not talk about the flagship OnePlus 13 right now, but R series is all about balance. That what also I have personally experienced with 11R and 12R. तो कैमरा वगैरह भी बहुत ठीक ठाक decent रहेगा, and you'll have a decent processor, or similarly features and functions and everything will be very good, top notch, if not the flagship level. तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. जस्ट लाइक गूगल पिक्सल इज ग्रेट इन कैमराज फॉर एग्जांपल, बट इट लैक्स इन मैनी डिफरेंट थिंग्स. आई मीन सम ऑफ यू माइट हैव नो. तो उस केस में इट्स हार्ड टू मेक अ डिसीजन कि शुड आई बाय इट और नॉट, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको कौन सी चीज़ कब जरूरत पड़ जाएगी. यू शुड हैव एवरीथिंग ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी इन अ फोन. तो वो एक ज़रूरी चीज़ है. दैट्स व्हाट आई लाइक, एंड दैट्स द रीज़न दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड फॉर विच आई हैव यूज्ड मल्टीपल फोन्स. अदरवाइज इससे पहले तो यही रहता था, स्टार्टिंग फ्रॉम नोकिया, दैट एवरी फोन वाज डिफरेंट फॉर मी. ऑल आई हैव स्विच्ड ब्रांड्स विद ईच मॉडल एवरी 2 to 3 years. ये एक रीज़न है कि मैंने OnePlus को रिपीट किया, बिकॉज इट डज प्रोवाइड अ गुड बैलेंस ऑफ पावर, परफॉर्मेंस and price. Yeah, it comes at around 42,999, the base variant, and I would say up to 40,000 is a sweet spot for a smartphone, because उसके बाद luxury add होता जाता है and you don't get that much features to justify that price. बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की. तो it comes with the same screen as 12R. There is not much difference. This is LTPO 4.1 AMOLED display with 120 Hz refresh rate. But this time they have used Gorilla Glass 7i instead of Victor 2, which was there previously in 12R. So Victor 2 is more premium than 7i, even though 7i may be a little bit more scratch resistant, but Victor 2 is overall a premium toughened glass which is usually used in even higher end phones. अच्छा, CPU की बात करें तो it comes with Snapdragon 8 Gen 3. This is last year's flagship which was used in OnePlus 12, if you remember. Then बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है. इट्स क्वाइट फास्ट. अगेन इट्स बिन जस्ट लेस देन 1 year. वो फेब में रिलीज हुआ था. तो आई वुड से स्टिल ऑलमोस्ट अ फ्लैगशिप. अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, यू वांट go for the elite model, the Snapdragon Elite, then you can go for OnePlus 13. Otherwise, I would say this should be more than sufficient for everybody. कितने भी आप हैवी यूजर हैं, आप गेम्स खेलते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं फ़ोन के अंदर, या फिर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी हैवी एप्स यूज़ करते हैं, it should still be fine for at least next 2 to 3 years at a minimum. So I don't think stretching the budget will have a lot of sense unless of course you have money to spend. कैमरा की बात करें तो इसके अंदर 58 कैमरा आता है. That means 50 megapixel is the main camera, 50 megapixel is telephoto, right? And 8 megapixel is ultra wide. तो telephoto again एक एरिया है जहाँ पे बहुत इम्प्रूव किया है. In the R series we never had a telephoto cam before, and it does make a great deal because you can capture some really great photos with the telephoto camera which you cannot do with even the primary main camera.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, इट्स सेम एज लास्ट ईयर एज 12R. दैट इज decent enough. I've been using it for last 1 year on 12R and even more than that if you count 11R, more than 2 years. So if you are someone who takes a lot of selfies, it's good, it's decent. It's not the best in the market, but I think when we talk about the price, then you don't get, it's still not a flagship, right? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल 19-20 का आपको डिफरेंस दिखेगा when compared to a flagship. तो it's not a camera centric, as I said, this phone is an all rounder and again camera is not bad. स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर दो स्टोरेज आती हैं, 12 256 एंड 16 512. तो 12 GB की रैम मिनिमम है और 256 GB की जो स्टोरेज है वो आपको मिलेगी बेस मॉडल में, और अगर आप हायर एंड पे जाते हो वो आपको मिलेगी 16 GB रैम और 512 GB की स्टोरेज. लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जो बेस वेरिएंट था दैट केम विद 8 GB ऑफ रैम, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव सेट 16 GB रैम एज अ मिनिमम. और सबसे बड़ा कैच है, दिस टाइम दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट इट्स UFS 4.0. तो लास्ट ईयर इट वाज UFS 3.1 आई थिंक इन द बेस मॉडल और 12R, बट दिस टाइम 13R से ही आपको UFS 4.0 मिलता है, विच इज़ अ मच फास्टर स्टोरेज स्पीड एज कम्पेयर टू 3.1 और बिलो. जो 80256 वाला मॉडल लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था दैट वाज 39999, वो इस बार इन्होंने लॉन्च नहीं किया. दिस स्टार्टेड विद 12256. तो उस लास्ट ईयर भी 12 GB वाले मॉडल का जो प्राइस था वो इतना ही था, 42999. तो प्राइस हैज़ नॉट चेंज. आई मीन फॉर सम पीपल दे विल थिंक दैट इस साल ये 3000 महंगा लॉन्च हुआ है, बट ऐसा नहीं है. उसमें रैम भी ज़्यादा है, इट्स सेम एज द 12 GB मॉडल फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो उसका प्राइस भी सेम था. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सो दे हैव बम्प्ड अप द बैटरी एज वेल. बैटरी डिपार्टमेंट में भी इंप्रूवमेंट है अलॉन्ग विद द कैमरा एंड the SSD speed and a couple of things more. बैटरी 6000 mAh की है और लास्ट टाइम इट वाज 55 एंड 11R जो है मेरे पास उसमें 5000 mAh थी. तो दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, अगेन दैट्स गुड. इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड की बैटरी है, इट्स नॉट अ लिथियम पॉलीमर और अ लिथियम आयन जो पहले यूज होती थी. दैट इज द रीजन दे आर एबल टू एक्सपैंड द बैटरी कैपेसिटी विदाउट मेकिंग द फोन थिक, बिकॉज ये एक थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है. आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द लेटेस्ट फोन्स में जो इस प्राइस रेंज में है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा रेंज में है वो सिलिकॉन कार्बाइड में ही आ रही हैं. तो चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी इन्होंने इस बार स्लो की है. दे आर गिविंग 80 watts ऑफ चार्जिंग एंड द प्रोवाइडेड चार्जर ऑल्सो सपोर्ट्स दैट, unlike 100 watt which we got in both 12 and 12R. So this time 13R has 80 watts and 13 has complete 100 watts like last year. तो 80 watts में अप्रॉक्सीमेटली जो एडवर्टाइज है वो है कि 50% आपका 20 मिनट्स के अराउंड हो जाएगा और फुल 0 to 100% अगर आपको करना है तो इट विल टेक अराउंड 50 to 55 मिनट्स. तो वहाँ थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा, बिकॉज 100 watts में मेरा पर्सनली जो है वो 25 मिनट्स में पूरा 100% चार्ज हो जाता है. तो दैट इज़ रियली हैंडी व्हेन यू आर इन अ हरी. बट आई थिंक 50% भी हो जाता है तो इट्स नॉट बैड. 80 watts इज स्टिल गुड एंड पूरा भी चार्ज करना हो तो 50 मिनट्स इज स्टिल बेटर देन 1.5 or 2 hours जो पुराने फोन्स में टाइम लगता था. अच्छा, ऑक्सीजन ओएस की बात करें तो ऑक्सीजन ओएस 15 इसके अंदर आता है एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नो दैट इट्स बेसिकली अ रीआइटरेशन ऑफ कलर ओएस. द ओनली डिफरेंस इज दैट कलर ओएस में बहुत सारी एड्स वगैरह रहती हैं, बट यूजुअली OnePlus का UI मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑक्सीजन ओएस, बिकॉज दे डोंट स्पैम योर फोन विद अ लॉट ऑफ एप्स एट स्टार्ट. यू हैव टू अनइंस्टॉल ऑल ऑफ देम. This time they do have added couple of apps, मेरे ख्याल 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं, बट यू कैन easily uninstall it. तो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर कर सकते थे. They could have kept the interface, the UI clean and elegant like before, but थोड़ा वो कलर OS से इंस्पायर्ड होते वो यहाँ तक पहुँच चुका है. I hope कि ये they don't mess up and make it just like color OS. Otherwise इसका जो USP है that it has a clean UI, ऑक्सीजन OS से ये स्टार्ट हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं लॉस्ट ना हो जाए, अदरवाइज इट विल लूज इट्स वैल्यू. फटाफट बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस की. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसके अंदर आता है कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल नैनो सिम है, बोथ 5G एंड इवन अगर आपके पास जियो है तो 5.5G भी सपोर्ट करता है. ब्लूटूथ 5.4, अगेन अ बम्प फ्रॉम लास्ट ईयर वेयर इट वाज 5.3. इट हैज़ NFC. Infrared is again handy if you want to use it with your appliances at home like a TV, AC. तो just एक add-on हो जाता है. Rating है IP65, not too good, not too bad. It's called waterproof and dustproof, but again you cannot immerse it in deep waters for long, so it's more of like a splash proof, but still it's good to have. ब्राइटनेस इज अराउंड 1600 निट्स, बट जो पीक है वो 4500 है जो पहले मार्केट किया जाता था, बट एक्चुअल हाई ब्राइटनेस मोड जो है HBM वो 1600 निट्स के अराउंड रहेगा. वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेगा 4K में अप टू 60 FPS, और 1080p अगर आप करना चाहते हैं तो अप टू 240 FPS तक ये चला जाता है. यू कैन डू 30, 60, 90, 120 एंड आई थिंक 240.
Battery, as I said, silicon carbide SiC 6000 mAh, which should make your phone last for up to 1.5 to 2 days of light usage and more than 1 day of even the heaviest usage that you can do. उसके अलावा इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, Wi-Fi 7 है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। अगेन अगर आप OnePlus 13 की तरफ जाते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली है, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक आता है, बट अल्ट्रासोनिक में बेसिकली डिफरेंस ये है कि इट यूजेस साउंड वेव्स टू आइडेंटिफाई योर थंब इम्प्रेशन। ऑप्टिकल में क्या रहता है कि लाइट होती है जो आपके इम्प्रेशंस को देख के आइडेंटिफाई करती है। थोड़ा सा जैसे अगर आपकी फिंगर्स गंदी हैं या फिर ऑयली है तो उस केस में ऑप्टिकल कभी कभी काम नहीं करता, बट अगेन अल्ट्रासोनिक इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट। आई हैव सीन सम रिपोर्ट्स वेयर कुछ टेम्पर्ड ग्लासेस या स्क्रीन गार्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक में इश्यूज आते हैं जो कि ऑप्टिकल में नहीं आते। तो अगेन प्रॉज एंड कॉन्स, बट यूजुअली अल्ट्रासोनिक थोड़े हाई एंड फोन्स में यूज़ होता है। ऑलराइट, दैट्स इट दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। ये एक ओवरव्यू था अबाउट द OnePlus 13R और क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी अ बैड डील, इवन दो ग्रीन लाइन इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं, बट इफ़ अ कंपनी इज़ गिविंग यू अ 6 month ऑफ हार्डवेयर replacement or a phone replacement policy free of cost and a lifetime warranty of green line issue on your screen, I think that's more than enough to let your worries go, because अपार्ट फ्रॉम दिस OnePlus में और कोई इशू नहीं रहा है। मैंने मतलब इतने सालों के बाद यूज़ करने के बाद भी मैं बता सकता हूँ इजीली, OnePlus 7 के बाद मैंने 8, 9 और 10 नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता है दोज वर वेरी मच क्रिटिसाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट इट हैड। उन्होंने अलर्ट स्लाइडर हटा दिया था और भी बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज थे, बट मेरा नॉर्मली 3 साल से पहले चेंज नहीं होता फ़ोन, तो मुझे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। तो एज सुन एज 11 वॉज लॉन्च्ड उसके रिव्यूज़ बहुत अमेजिंग थे। सो इट्स काइंड ऑफ वॉकिंग ऑन द सेम लाइन्स। अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज भी देखेंगे, दे स्टार्टेड विद 11 एंड दे आर कंटिन्यूइंग द सेम विद 12 एंड 13। दिस टाइम थोड़ा सा डिज़ाइन में आप देखेंगे इट्स अ बॉक्सी डिज़ाइन जस्ट लाइक आईफोन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैमरा मॉड्यूल है बैक पे वो बहुत सिमिलर है, ऑल्दो दे हैव नॉट मर्ज्ड इट विद द फोन फ्रेम दिस टाइम, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस से देखेंगे तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ OnePlus फोन। तो और कोई कमी नहीं है उसके अंदर। इट्स क्वाइट sturdy, you can use it long term, 3 to 4 years without issues, and also the Android upgrades that I talked about, I think that will easily make my decision. अगर मुझे इस टाइम फ़ोन रिप्लेस करना होता तो I would definitely have considered it as one of the top 3 phones to buy. For everyday use, I think whatever AI features OnePlus is giving would be more than sufficient for an average user. अगर आप इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहते हैं तो सेल विल स्टार्ट ऑन 13th of January 12 PM IST इंडिया टाइम, और उसको डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको अमेजोन का लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको लेना ही है OnePlus तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज जो ऑफर्स लॉन्च टाइम पे निकलते हैं समटाइम्स यू डोंट गेट दैट अलॉट लेटर इन दैट ईयर। आपको दिवाली सेल में शायद मिल जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी रिपब्लिक सेल विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून आई थिंक, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। बट लॉन्च ऑफर्स में मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एंड ऑल्सो द एक्सचेंज बेनिफिट्स दैट यू गेट। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली हिट अ लाइक, और ऐसे टेक वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है टेक लाइफ नेक्सस, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।